أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. کمزوری بڑھے، شریر کے انگوں میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ عمر کے آخر میں تیرے پاس کمزور رہ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، یعنی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا جسے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے ترجیم آدر کی بات کہنا، اور بہت زیادہ ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا. ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ ادب کے خلاف ہے اور اس میں ان کے دل دکھنے کا ڈر ہے. لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا نام لے کر ذکر کرنا جائز ہے. ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام اور سیوک اپنے مالک سے کرتا ہے، اور ان کے لیے عاجزی نمرتا کا بازو بچھا، یعنی ونمرتا اور مہربانی اور جھک کر پیش آ، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا ویوہار کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے پیار دلار سے پالا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹ. نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت کو کتنا بھی بڑھایا جائے لیکن ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو.
इस आयत से साबित हुआ कि मुसलमान के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ जायज और उसे फायदा पहुंचाने वाली है। मुर्दों के इसाले सवाब में भी उनके लिए रहमत की दुआ होती है, लिहाजा इसके लिए यह आयत असल है। माँ बाप काफिर हों तो उनके लिए हिदायत और ईमान की दुआ करे कि यही उनके हक में रहमत है। हदीस शरीफ में है कि माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह ताला की रजा और उनकी नाराजी में अल्लाह ताला की नाराजी है। दूसरी हदीस में है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला जहन्नमी न होगा और उनका नाफरमान कुछ भी अमल करे अजाब में जकड़ा जाएगा। एक और हदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, इसलिए कि जन्नत की खुशबू 1000 बरस की राह तक आती है और नाफरमान वह खुशबू न पाएगा। न सगे रिश्तों को तोड़ने वाला, न बूढ़ा बलात्कार, न घमंड से अपनी इजार टखनों से नीचे लटकाने वाला। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। माँ बाप की फरमानबरदारी का इरादा और उनकी खिदमत का शौक। अगर तुम लायक हुए और तुमसे माँ बाप की खिदमत में कमी वाक़ई हुई तो तुमने तौबह की, तो बेशक वह तौबह करने वाले को बख्शने वाला है। और रिश्तेदारों को उनका हक दे, उनके साथ मेहरबानी करो और मोहब्बत और मेल जोल, खबरगिरी और मौके पर मदद और अच्छा सुलूक। और अगर वो मेहरमों में से हो और मोहताज हो जाएं तो उनका खर्च उठाना यह भी उनका हक है और मालदार रिश्तेदार पर लाजिम है। कुछ मुफस्सिरों ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि रिश्तेदारों से सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ते रखने वाले मुराद हैं और उनका हक यानी 5वां हिस्सा देना और उनका आदर सत्कार करना है। और मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक दो यानी ज़कात। और फजूल न उड़ा यानी नाजायज काम में खर्च न कर। हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तब्जीर माल का नाहक में खर्च करना है। बेशक उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं कि उनकी राह चलते हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, तो उसकी राह इख्तियार करना न चाहिए। और अगर तू उनसे यानी रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों से, यह आयत महज व बिलाल व सुहैब व सालिम व खब्बाब सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतरी, जो समय समय पर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते थे। अगर किसी वक्त हुजूर के पास कुछ न होता तो आप हया से उनका सामना न करते और खामोश हो जाते इस इंतजार में कि अल्लाह ताला कुछ भेजे तो उन्हें अता फरमाए। मुंह फेरे अपने रब की रहमत के इंतजार में जिसकी तुझे उम्मीद है तो उनसे आसान बात कह, यानी उनकी खुशदिली के लिए उनसे वादा कीजिए या उनके हक में दुआ फरमाइए। और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख और न पूरा खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुआ थका हुआ। यह मिसाल है जिससे खर्च करने में मध्य मार्ग पर चलने की हिदायत मंजूर है और यह बताया जाता है कि न तो इस तरह हाथ रोको कि बिल्कुल खर्च ही न करो और यह मालूम हो गया कि हाथ गले से बांध दिया गया है, देने के लिए हिल ही नहीं सकता। ऐसा करना तो मलामत का कारण होता है कि कंजूस को सब बुरा कहते हैं। और न ऐसा हाथ खोलो कि अपनी जरूरतों के लिए भी कुछ बाकी न रहे। एक मुसलमान बीबी के सामने एक यहूदी औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का बयान किया और उसने इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर कहा कि हजरत सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बता दिया और कहा कि हजरत मूसा की सखावत इस इंतहा पर पहुंची हुई थी कि अपनी जरूरतों के अलावा जो कुछ भी उनके पास होता मांगने वाले को देने से नहीं हिचकिचाते। यह बात मुसलमान बीबी को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि सारे नबी बुजुर्गी व कमाल वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उदारता और सखावत में कुछ संदेह नहीं, लेकिन सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबसे ऊंचा है। और यह कहकर उन्होंने चाहा कि हजरत सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और करम की आजमाइश उस यहूदी औरत को कर दी जाए। चुनाचे उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को भेजा कि हुजूर से कमीज मांग लाए। उस वक्त हुजूर के पास एक ही कमीज थी जो आप पहने हुए थे, वही उतार कर अता फरमा दी और आपने मकान के अंदर तशरीफ रखी। शर्म से बाहर न आए यहां तक कि अजान का वक्त हो गया। अजान हुई, सहाबा ने इंतजार किया, हुजूर तशरीफ न लाए तो सबको फिक्र हुई
हाल मालूम करने के लिए सरकार के मुबारक मकान में हाजिर हुए तो देखा कि पाक बदन पर कमीज नहीं है। इस पर यह आयत उतरी, बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहे रिज्क कुशादा देता और जिसे चाहे उसके लिए तंगी करता और उसको कसता है। बेशक वह अपने बंदों को खूब जानता और उनकी हालतों और मसलहतों को देखता है। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।